Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we are going to start a new chapter of class 7 science, and that is chapter number 11, and name of chapter is transportation in animals and in plants. Students, in today's video we are going to discuss why there is need of transportation system in animals and in plants. ओके हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है ही क्यों एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, एंड दिस सिस्टम इंक्लूड्स blood and its components, and very important for us, and of this chapter the topic is heart. Okay, हमारा दिल. Okay, so students, let's begin with why there is need of transportation system in animal or in plants. Students, whenever you want to shift your house from one place to another, you literally required a transportation system for your luggage, for your stuff which you are having. सपोज करिए कोई फैमिली में फादर का ट्रांसफ़र या मदर का ट्रांसफ़र जयपुर से चेन्नई हुआ है, तो वो लोग किससे जाएंगे? दे विल मूव by car, by train, by aeroplane, whatever, but their luggage needs a transport system to shift from Jaipur to चेन्नई. तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी? उन्हें एक चैनल की ज़रूरत पड़ी, उन्हें एक रूट की ज़रूरत पड़ी, और उस रूट पे चलने वाला एक व्हीकल उनके लिए रिक्वायर्ड है. आइदर इट इज़ अ ट्रक, it is a goods train, whatever they are having and whatever the available is there. Okay, so in the same manner, in animals and in plants, all living organisms need food, water and oxygen for their survival. We inhale and take oxygen, our lungs full of oxygen, then we have to circulate that oxygen in all over body parts, isn't it? In our cells. So this is mandatory to transport all these nutrients, water or the oxygen in all the body parts. Either they are animal or they are plants. Okay students, they need to transport all these to various parts of the body. Animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Yes, this one is another important factor. Class 7th, देखो हम जो intake कर रहे हैं फूड, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यू रिमेंबर दैट डाइजेशन प्रोसेस. आफ्टर डाइजेशन देयर इज़ एसिमिलेशन. हमने जो खाना खाया उससे जो हमें एनर्जी गेन होने वाली है, तो बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूरी बॉडी में सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है. इज़ दैट क्लियर? बट स्टूडेंट, विद द सप्लाई ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन, the removal of the waste product from the body is also necessary, and for this we also require, animals also require a transport system. Is that clear? Okay, so let's begin with the human circulatory system. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? इट इज़ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आपकी बॉडी का वो सिस्टम जो सारे के सारे आपने चाहे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वाटर लिया है या ऑक्सीजन लिया है, इसको पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा थ्रू आउट द बॉडी? ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये क्या क्या सप्लाई करता है? इट सप्लाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ removal, that is the waste for your body that have to remove from your body. So ये काम भी कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज बेसिकली द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. अब बिफोर दैट, अब किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. तो हियर द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इज़ ब्लड. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ blood.
Fine. And very first time the English physician William Harvey AD 1578 1657 में discovered the circulation of blood. This one is very important also. Who discovered the circulation of blood? William Harvey. Is that clear? Student, have a look here on this diagram. This is your circulatory system which is spread all over the body. Have a look here. यहाँ पर जो आपको red color की tube like structures तो दिख रहे हैं which are from your head to toe, these are called artery. Okay, and the blue color one is vein. And we are having a pumping organ here which is known as heart. Okay, is that clear everybody? Fine. So our circulatory system parts are blood, which is a medium, blood vessels means your artery and vein, okay, heart and heartbeat. Is that clear? We will discuss one by one. Okay, fine. Let's discuss about blood. क्या होता है blood? मैम जब हमारी उंगली कट जाती है ना, वो जो रेड fluid निकलता है, that is blood. Yes. So blood is the fluid which flows in the blood vessels. Okay. It transports the substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. Yes. ठीक है, डाइजेशन हो गया. डाइजेशन होने के बाद आपका जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है जो आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, कौन करता है? ये ब्लड करता है. ओके, फाइन. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स to the cells of the body. You inhale, you intake oxygen and then your lungs will full of oxygen. Is that clear? अब वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के पार्ट्स में जानी भी तो चाहिए. कौन लेके जाता है? ब्लड. ओके. It also transports waste for the removal from the body. Yes, ये काम भी blood करता है. That's why blood is a medium. Okay. आप डिस्कस करते हैं ये ब्लड बेसिकली किन किन चीज़ों से बना है. What are the components of the blood, बच्चा? So blood is composed of a fluid that is called plasma. We call it blood plasma, in which different types of cells are suspended. And what are the different type of cells? They are red blood cells, white blood cells, blood platelets. अब red blood cells को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. अबाउट दैम यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. ठीक है, कि हम इन्हें एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाट आर वाइट ब्लड सेल्स, व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स. Is that clear, students? First is red blood cells. In short, we call them RBC. R for red, B for blood, and C for cell. RBC contain a red pigment and which is known as hemoglobin. This is the important one, and that's why your blood appears red in color. Fine, class 7 समझ में आ रहा है? Hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body, ultimately to the cells. Yes, आपका जो ये RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसके बाद आपकी थ्रू आउट द बॉडी में सप्लाई होता है. एंड द लास्ट पार्ट इज योर सेल. हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? हमारे सेल्स तक पहुँचनी चाहिए. समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन बाइंड विथ hemoglobin and then it will be transport all over throughout the body. Fine. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. Yes, and have a look, your RBCs are look like this. Okay, RBC समझ में आ गया. अब WBC बात करते हैं. WBC that means white blood cell. Class 7th, white blood cells, short form WBC. They fight against germs that may enter your body. Yes,
ये हमारी बॉडी के फाइटर्स हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं। जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, आइदर इट इज़ अ जर्म और द बैक्टीरिया, when there is an infection then WBCs are fighting for us। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की ताकत बढ़ाते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्लेटलेट्स ये क्या काम करते हैं? इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या करते हैं? whenever you got injured, suppose, ठीक है, and there is a bleeding, suppose I got injured from here and there is a bleeding from my skin here, and after some time you will observe that कि bleeding automatically stop and there is a clot over that injury। समझ में आया? And that clot which is formed, it is just because of blood प्लेटलेट्स। जब कभी हमें चोट लग जाती है और हमारी उस चोट से ब्लीडिंग होती है तो कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करते हैं कि ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है? एक थक्का जम जाता है, एक क्लॉट बन जाता है, एंड दैट क्लॉट इज फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड platelets। Is that clear? A clot is formed because of platelets because they release what? Clotting chemicals at the site of injury। ठीक है, blood platelets prevents bleeding। Is that clear? ये हमारे जब भी कभी चोट लग जाती है वहाँ पर ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। समझ में आ गया? ब्लड के अंदर कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट, अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके लिए हमें सोचना भी चाहिए और हमें नॉलेज भी होना चाहिए, दैट इज़ ब्लड डोनेशन। स्टूडेंट्स, इन टुडेज लाइफ विच इज़ वेरी हैक्टिक, इतनी भागम भाग है, समटाइम इफ समबडी लिटरली नीड्स ब्लड, okay, so we have to donate the blood। we कौन? the person who is above the age of 18 years। फाइन, कोई भी हेल्दी पर्सन अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। योर ब्लड कैन बी सेव इन द ब्लड बैंक्स। ठीक है, आपका जो ब्लड है जो आप डोनेट करते हैं ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। सो वॉलंटरी आप अपना ब्लड डोनेट करें। कौन? आप बच्चे नहीं, द पर्सन हु आर अबव द 18 ईयर्स। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जब भी किसी को ब्लड की नीड होगी दे कैन टेक ब्लड एंड indirectly or directly you can save a person's life। Fine, so always remember blood donation is a good thing। Okay students, let's discuss about the important part of human circulatory system and that is blood vessels। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये ब्लड वेसल्स ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ब्लड को ले जाने का और लाने का काम करती हैं। समझ में आ रहा है? ये दीज आर जस्ट लाइक द ट्यूब्स। ओके, there are different types of blood vessels and they are basically classified in 2 types। first one is arteries and second one is veins। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। रिमेंबर दैट डायग्राम जिसमें हमने शो किया था कि जो रेड वाली हैं दे आर आर्टरी और जो ब्लू वाली हैं दे आर वेन। बेसिकली इनका कलर रेड और ब्लू नहीं होता है, ये सिर्फ हम एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज आर्टरी। बेटा आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड और वी कॉल इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड, कौन सा? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इज इट क्लियर? सिंपल सा फंक्शन है। Arteries carries oxygen rich blood or oxygenated blood from heart to the all parts of the body। okay, अब इसका स्ट्रक्चर देखो। arteries have thick elastic walls। fine, okay, it will help you to differentiate from
vein. Since blood flows is rapid and it is at the high pressure, yes, हमारा आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है ना बेटा, ये बहुत तेज़ होता है. दैट्स वाई जो आर्टरीज की वॉल होती हैं कैसी होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लेट्स डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ ऑलरेडी इन योर बॉडी एंड दैट इज़ कि have you ever feel any thrombing movement when you just touch your left wrist with your right hand's finger, like when you just put your middle or the index finger here, and whenever you visit to a doctor, the doctor just take your left wrist और फिर वो ऐसे चेक करता है. तो आपने देखा होगा कि वो घड़ी में भी देखते हैं और ऐसे नोटिस करते रहते हैं. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ थ्रॉम्बिंग मूवमेंट हेयर. एंड व्हाट इज़ दिस? वो क्या चेक करते हैं? वो नब्स चेक करते हैं. समझ में आ रहा है? एंड दैट थ्रॉम्बिंग इज़ व्हाट? इट इज़ द पल्स. एंड व्हाई it is so? It is just because of the blood flow which is flowing in your arteries. समझ में आया? यहाँ पर हमारी रिस्ट पे जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये मसल्स में एम्बेडेड नहीं होती हैं, ये सुपरफिशियली होती हैं. यहाँ पर हमें आराम से दिख भी जाती हैं, आप देख सकते हो, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो. व्हेन यू पुट योर फिंगर्स हियर ऑफ योर राइट हैंड यू विल फील अ थ्रॉम्बिंग मूवमेंट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड ये क्या है? ये हमारी पल्सेस हैं. समझ में आ गया? एंड स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बीट्स per minute you are feeling here, these are called pulse rate. Is that clear? The number of beats per minute, they are called pulse rate. Fine. A resting person usually has the pulse rate between 72 and 80 beats per minute. Yes, this one is the important one. कोई भी इंसान जो resting position में है उसके अंदर 72 से 80 beats per minute आप observe कर सकते हैं. Is that clear? So, what is pulse rate? The number of beats in per minute. फाइन. और एक जनरल और एक रेस्टिंग पोजीशन में जो इंसान है उसके अंदर कितनी होगी? इट इज़ इन बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट. फाइन स्टूडेंट्स. अब दूसरा ब्लड वेसल क्या होता है? दूसरा ब्लड वेसल है वेन. बेटा व्हाट इज दिस वेन? ये वेन वो वेसल है विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वी कॉल इट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. Fine. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. Is that clear? Arteries क्या करती हैं? Oxygenated blood heart से पूरी body में supply करती हैं. फाइन. बट आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ठीक है? वो हार्ट से ले जाती हैं, ये हार्ट तक लेके आती हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द वेन्स हैव थिन वॉल्स. ठीक है? आर्टरीज के पास क्या है? थिक इलास्टिक वॉल्स. फाइन. अब देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट. इनके पास वाल्व्स होते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट. ओके? कैसे होते हैं? जस्ट हैव अ लुक. सपोज दिस इज योर वेन. इनके पास यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं. ये क्या करती हैं? इसे सिर्फ ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती हैं, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है. Is that clear everybody? Vessels are clear. Blood vessels are of two types, arteries and veins. Students, along with arteries and veins, you also heard about the blood capillaries. And what are the blood capillaries? बच्चा बाटी होता क्या है कि जब हमारा जो blood supply हो रहा है through arteries and veins, is that clear? But after reaching to the tissue level and further we have to move to the cell level. अब cells तक ले जाने के लिए जो arteries का diameter है वो ज़्यादा होता है. That's why artery on reaching to the tissue they further divided into thin tubes and these extremely thin tubes are called
कैपिलरीज. इज दैट क्लियर? जैसे ही हम टिश्यू तक पहुंचते हैं, आर्टरीज पहुंचती हैं, उसके बाद हमें सेल तक हमारे ब्लड को सप्लाई करना है, तो आर्टरीज का जो डायमीटर होता है ना बेटा, ये ज़्यादा होता है. ठीक है, ये उसके अंदर पेनिट्रेट होके सेल को ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए ये आर्टरीज क्या होती हैं, फर्दर बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं, ब्रांच्ड हो जाती हैं, एंड दीज थिन, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. एंड फर्दर द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स which will empty into the heart. Is that clear everybody? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आवर हार्ट. ओके, अब ये हार्ट क्या है? अब हार्ट, आपने कभी किसी मशीन को कंटिन्यू काम करते हुए देखा है? ये हमारा जो हार्ट है ना, ये एक वो पंपिंग मशीन है, वो जब तक हम जिंदा रहते हैं ये नॉन स्टॉप काम करता है. समझ में आ रहा है? अब हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं. ना तो हार्ट जो ना तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, समझ में आ रहा है? हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, वो है पंप करना. समझ में आ रहा है? आपके घरों के अंदर मोटर लगी हुई होती है, वो क्या करती हैं? पानी को पंप करती हैं और ऊपर तक लेके जाती हैं, सप्लाई करती हैं. ऐसा ही काम हमारे हार्ट का है. Is that clear? It is the pumping organ and a very important machine of our circulatory system. Is that clear everybody? Heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances in it. Yes, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर वाटर है. Is that clear? ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है. Is that clear? Fine. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Yes, हमें कहते हैं ना कि दिल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, बट एग्जैक्टली बेटा ये इट इज़ इन बिटवीन योर चेस्ट कैविटी, बट इट इज़ tilted little bit towards the left. फाइन, ये पूरी तरह से लेफ्ट में नहीं है. फाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारे हार्ट का? इट इज़ जस्ट लाइक द टिल्टेड कॉनिकल शेप. फाइन, ये ऐसे है, ये ऐसे कैसे पूरा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. अच्छा, अब मुझे बताओ ज़रा, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हार्ट है, इसका शेप कितना होगा? मतलब शेप, सॉरी, इसका साइज़ कितना होगा? इट इज़ जस्ट लाइक दिस, योर क्लोज्ड वन. आपकी जो बंद मुट्ठी है ना, इतना सा इसका साइज़ है. और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में हार्ट का जो वेट होता है, इट इज़ जस्ट नियर अबाउट 250 to 350 ग्राम्स. समझ में आया? कितना? 250 से लेके 350 ग्राम तक का वेट होता है. ठीक है, इतनी छोटी सी मशीन, इतना सा वजन और कितना सारा काम करता है. Isn't interesting, students? Let's discuss about it. Okay, students, have a look here. This is the section of heart. ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपका हार्ट है ना, इसको हमने 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया है. ठीक है, अब 4 चैम्बर्स कैसे हैं बेटा? सबसे पहले तो मोटे मोटे तौर से ये समझ लो कि हमने इसको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, हियर इज अ सेप्टम. ठीक है, दिस इज द पार्टीशन जो इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. दिस इज द सेप्टम. ओके, अब फर्दर ये जो राइट और ये जो लेफ्ट और राइट है ना, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला. ठीक है, ये वाला और ये वाला. एंड दिस वन इज राइट चैम्बर, दिस वन इज लेफ्ट चैम्बर. अब लेफ्ट में 2 चैम्बर हैं, 1 2. ठीक है, राइट में 2 चैम्बर हैं, 1 2. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले चैम्बर हैं दोनों, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इनको हम कहते हैं एट्रियम.
atrium or atria, and earlier we call them auricles. Is that clear? Left atrium, right atrium. Fine. नीचे वाले जो chambers हैं लेफ्ट और राइट, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. समझ में आ रहा है? इनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स. ओके. अब और क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट? देयर इज वेना कावा. ठीक है. एंड एओर्टा. एओर्टा क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर. इज दैट क्लियर? अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया. हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर, 2 आर्ट्रियम, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. अब ये जो ऊपर वाले जो चैम्बर है ना बेटा, कौन से? लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, ये रिसीविंग का काम करते हैं. ठीक है, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं. और ये जो नीचे वाले हैं ना, ये वेंट्रिकल हैं जो लेफ्ट और राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये रिसीव करते हैं, ये दोनों नीचे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. समझ में आ गया? अब होता क्या है, आर्टरी और वेन का फंक्शन आपको पता है. यहाँ पर हमारे पास वेना कावा है. देयर आर 2 वेना कावास, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो बॉडी से आ रहा है, ठीक है, रिमेंबर दिस, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसको लेकर कहाँ आती है? आपके राइट एट्रियम में आती है. ठीक है, ये राइट एट्रियम क्या करता है? इसको मूव करता है राइट वेंट्रिकल में. इसका काम रिसीविंग का था, इसने रिसीव कर लिया, और यहाँ पर इसके पास वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब इससे क्या होता है? एक बार ब्लड आया, उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं. फिर यहाँ से क्या होता है? जब आपका ये जो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेता है, फ्रॉम हियर योर पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द एक्सेप्शन. देखो, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट हेयर इज एन एक्सेप्शन. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक इस ब्लड को लेके जाती है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? फिर वहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है. दैट मीन्स आपने जो इनहेल की हुई ऑक्सीजन होती है, वो आपके ब्लड के साथ मिक्स होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड बनता है. ठीक है, अब लंग्स से आपकी ये जो पल्मोनरी वेन है ना, अब अगेन एन एक्सेप्शन, ये जो पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से लेके आती है. ठीक है, वेन कभी भी ऑक्सीजन रिच नहीं लेके आती हैं, बट यहाँ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लाके और डालती है लेफ्ट एट्रियम में. इज दैट क्लियर? लेफ्ट एट्रियम इसको मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. यहाँ पर होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व. कौन से? बाइकस्पिड वॉल्व. यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ थे ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ से आपका ये एओर्टा इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करती है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया आपका कैसे आपका ये जो हार्ट है ये फंक्शनिंग करता है? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम. ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये रिसीविंग का काम करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं. नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. समझ में आ गया? आपके
बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके आती है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड आपका आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स में, और वहाँ से आपका ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, एंड फ्रॉम योर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं पल्मोनरी वेन, वो लेके आती है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम उस ब्लड को डालता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, और एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। Is that clear everybody? Have a look. This is the systematic diagram. ये आपके lungs हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये lungs हैं, ये आपका heart है, ये vein है, ये artery है, ये capillaries हैं। फंक्शन सिंपल सा है, हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, हार्ट के चैम्बर्स में डालती है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ ले जाती है, लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और कहाँ डालती है, हार्ट की दूसरे साइड के चैम्बर्स में, वहाँ से एओर्टा उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, और सेल्स और टिश्यू लेवल पे सप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कैपिलरीज की। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फाइन, आई होप द फंक्शनिंग इज क्लियर एवरीवन। अब वेरी शॉर्ट एंड स्वीट हम इसको पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम heart, so this is an artery, not a vein. It carries blood, carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary vein carries oxygen rich blood from lungs to the heart. Is it clear? And very short and sweet, heart is a 4 chamber structure, ठीक है। अब ये क्या कहलाते हैं, आर्ट्रिया, और सिंगुलर हम जब इसकी बात करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ठीक है, आर्ट्रियम बोलेंगे, और पहले हम क्या बोलते थे इनको, ऑरिकल्स भी बोलते थे। 2 लोअर चैम्बर्स जो नीचे के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आर्ट्रिया और ऑरिकल्स। अब इनके बीच में पार्टीशन होता है, मैंने बताया था सेप्टम होता है। अब ये सेप्टम क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है। हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फाइन। हार्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, व्हाट इज आवर हार्ट and what is the structure, what is the functioning of it. Okay student, अब एक बहुत अच्छी चीज़ जिसको हम कितनी बार गानों में सुनते हैं और फील भी करते हैं, दैट इज़ आवर हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट है ना, इसके जो चैम्बर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मसल्स, और हमारे इस हार्ट में देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। पंप कैसे करता होगा, ऐसे ऐसे, one time contraction, one time relaxation, contraction relaxation, contraction relaxation, ठीक है। and these muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction is followed by its relaxation that constitute a heartbeat. ये आपकी दिल की धड़कन होती है, relaxation and contraction. Okay, is that clear? Students, have you noticed that whenever you visit a doctor, the doctor use a instrument to listen your heartbeat? Yes, it is stethoscope. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument that is called stethoscope. अब ये stethoscope करता क्या है बेटा? It is a device which amplifies the sound of the heart. Okay, अब have a look कैसा होता है, just like this. It is having 3 important parts, and first important part जो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है, that is earpiece, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अपनी आपकी चेस्ट पे रखता है, दैट इज़ योर चेस्ट पीस, और ये एक ट्यूब होती है। एंड आफ्टर पुटिंग द ईयर पीस इन एयर, he observe, he listen your sound of your heart, and that is your heartbeat. इससे वो पता लगाता है कि हमारा हार्ट नॉर्मल तो काम कर रहा है ना, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ तो नहीं है या ज़्यादा
कम तो नहीं है. ओके, अब what is this? Each heartbeat generate one pulse in the arteries. Is that clear? हर दिल की धड़कन, एक धड़कन, it generate pulse in the arteries. Okay, the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. The pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. It is important one. The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of the blood and transport of the substances to the different parts of the body. Is it clear, everybody? What is heart? What is the structure of your heart? What is the functioning of your heart? And what is the heartbeat? Is that clear? It is the contraction and relaxation of the muscles. ठीक है, आपके दिल के चार चैम्बर्स में जो होता है, फाइन. और आपकी ये जो पल्स रेट होती है जो पर मिनट में, इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. Fine. Students, this is the circulatory system in human being. I hope the circulation process is clear, everybody. फिर बोल रही हूँ, your heart never purify your blood. It is the pumping organ only. Okay? And students, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरे के पूरे living organisms में, animals में ऐसा ही circulation होता है क्या? No, not exactly. ठीक है, आपके जो लोअर क्लास एनिमल्स हैं लाइक योर हाइड्रा, पैरामीशियम, इन सब के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है. इनका जो जनरल बॉडी सिस्टम है वही ये सारे काम करता है. यू ऑल्सो लर्न इन अमीबा द डाइजेशन प्रोसेस, इजंट इट? सो सेम देयर इज़ नो सच कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन सिस्टम. ओके, और हमारी बॉडी में कैसा सर्कुलेशन सिस्टम है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. Okay, and in next video we will discuss the excretory system in human being and transportation of minerals and nutrients in plants. Okay, till then take care and have a good day everyone. Thank you.